you guys very well. And today my topic is related to AI. AI is not for us, it's not for you, it's AI for everyone. AI helps everyone to automate their tasks. So let's imagine you guys are working late night on AWS and your environment has been shoot from 500 to 500 thousand USD. So everyone will be shocked, especially all the youngsters, guys, I can see from here, and everyone who is currently working. So I can ask one of you guys what you can do. You can raise your hand and organizer can unmute the mic and they can tell. So let's start. I want my session to be creative, not like a boring lecture. So go ahead and raise your hand, and whoever raise your hand, also share your LinkedIn so it will be easy to connect. Okay. Anyone? फैजान भाई चैट में लोग पूछ रहे हैं कि काइंडली क्वेश्चन अपना रिपीट कर दें। ओके। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप काम कर रहे हैं रात को AWS पे, आपकी डिप्लॉयमेंट है, आप टास्क कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं, आपका जो बिल है वो 500 से 5000 हो गया है। तो आप ट्रबल शूट कैसे करेंगे? बीइंग अ डेवॉप्स, बीइंग अ क्लाउड, बीइंग एन AI इंजीनियर, हाउ विल ट्रबल शूट? बिल्कुल माइक अनम्यूट करें और बताएं। चैट में भी बता सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल हो आपको। ऑर्गेनाइजर इनका माइक अनम्यूट कर दो। Assalamu alaikum. Sir, I हम्म think I will go to the Coast Explorer in AWS, and then also I will go to the CloudWatch. So maybe the first thing is the Coast Explorer. We will try to find which service is costing so much. हम्म Mm, and also, I mean, later on we can set up cost anomaly. हम्म I mean, we can enable this feature, so next time this won't happen. Um, if any service is rising, or the cost of any service is rising abruptly, then we can set up a notification for that. So yes, the first action is we go to the Cost Explorer and we try to check what is happening. Thank you. Very nice, very nice. Clapping for this guy. He gave a great answer. Anyone else who want to give answer on this one? Okay. So instead of going to all tabs one by one, I will go to my Cloud Explorer. I will watch my Cloud Watch. I will look my EC2, where how many EC2s I have. I will go to RDS. I will go through region wise. I will go to S3, how many storage I have, and who has opened, who has not stopped the EC2 or not has done all that one. So I have to review my IAM, I have to review my security guard, I have to go multiple of tabs. So, I'm a really, really lazy engineer. I don't want to do this multiple things. So I have an idea. I will go to my AI engineer. I will explore that who will work for me, and he will never sleep. He will never get tired, and he will never ask for what you call leaves. And I had one cup of tea. I will looking into that. That's my idea. So I will take you guys to the one of the most favorite cartoon which we ever have seen is Aladdin, and we already know about this lamp ना। तो मैं ये सोचूंगा कि यार कोई ऐसा जादू का चराग मिल जाए या इस तरह का मिल जाए। सब सोचते हैं एक विशेष के तौर पर कि यार मैं इसको रब करूं और मेरा मतलब सारे काम हो जाए ना एक साथ। मुझे कॉस्ट एक्सप्लोरर पे जाना भी ना पड़े, और मुझे क्लाउड ट्रेल देखना भी ना पड़े, और मुझे क्लाउड वॉच का भी कुछ ना करना पड़े, मुझे IAM के रिस्क भी ना पता चल जाए।
सिक्योरिटी हब का भी इश्यूज ना हो, उसके बाद मुझे कॉन्फ़िग भी हो जो भी सारे और ड्यूटी वगैरह वो भी साथ हो जाए, और उसके बाद मजे की बात वो मुझे मुझे रूट कॉज भी मेरा बताए, और मेरे रिस्क डिटेक्ट करे, मेरे सेविंग्स डिटेक्ट करे। और सेविंग्स को आजकल हम जो है ना फाइनऑप्स वगैरह का एक नाम देते हैं, नाम चेंज होते रहते हैं। और मेरे फ्यूचर कॉस्ट प्रेडिक्ट करे, और रिकमेंडेशंस वगैरह करे, और ये सारी चीज करे, मेरे बिल क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, मेरा अकाउंट सिक्योर है और नहीं है। मतलब ये मल्टीपल चीजें सारी एक साथ करे मेरा एक अलादीन का चराग जो हम जिसे हम कहते। तो मेरा एम इस फोकस ये है कि आप सबके पास ये लैंप हो, और जब हमारा ये सेशन खत्म हो तो आपको ये आइडिया हो जाए कि लैंप क्या है, लैंप कैसे बना, लैंप को हम रब करके क्या क्या कर सकते हैं। तो उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो मुझे बता सकते हैं। और सेकंड, वन बाय वन अपना नाम, अपना स्किल सेट, आपका क्या एक्सपीरियंस है, और अपना लिंक्डइन, ये आप सब शेयर करें अपने मैसेजेस पे, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। और सेशन के दौरान किसी को भी क्वेश्चन हो तो वो मैसेज वगैरह और पिंग करके मुझे बता सकते, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज का हमारा टॉपिक है, जी जी आमिर बोले, माइक म्यूट कर दे जिन जो जो रेस कर रहे हैं। जी अ, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? जी 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 बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं। अच्छा सर, वो एंड पे ही रखेंगे ना आप क्वेश्चन आंसरिंग का जो जी सेशन जी जो जी मैं आप। एंड में रखूंगा, बस आप अपना नाम, अपना वर्किंग एक्सपीरियंस कितना है, और अपना लिंक्डइन वो ठीक शेयर है करें, ठीक है। सब ठीक मैसेज पे सब शेयर करें, और एक दूसरे को ऐड करें, ठीक है? ठीक ठीक। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो एआई के बारे में, एआई किस तरह काम कर रही है, एडब्ल्यूएस क्या है, यू गाइस आर एक्सपर्ट। मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह हम काम कर रहे हैं, किस तरह हम अपना काम स्मार्ट वे में कर सकें, और किस तरह हम अपने ऑटोमेट मॉनिटरिंग कर सकें, लॉग्स देख सकें, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये है मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको स्क्रीन विजिबल हुई होगी। आई एम करेंटली वर्किंग इन अबू धाबी इन वन ऑफ मोस्ट इंटरनेशनल कंपनी, और आई हैव बीन 6 ईयर एक्सपीरियंस, और मेरी को टेक्नोलॉजीज क्लाउड, कुबरनेटिस, टेराफॉर्म, लिनक्स, डॉकर, CI/CD है। करेंटली मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ, और मैं सर्टिफाइड हूँ CKA क्लाउड प्रैक्टिशनर, सिसऑप वगैरह वगैरह ETC। और मैंने 3-4 सेशंस कंटिन्यूसली ले रहा होता हूँ टीचिंग के, और मैं मेंटोर्स भी कर रहा होता हूँ स्टूडेंट्स को। तो किसी को भी कोई भी इशू हो तो मेरी लिंक्डइन पे पिंग मुझे कर सकता है, ठीक है? अब अब हमारा क्राइटेरिया क्या है? मैंने मतलब आपको एक अलादीन की बात बताई कि यार मुझे जाना पड़ रहा है मुख्तलिफ क्लाउड ऑप्स पे, और मैनुअल और रिएक्टिंग पे। तो ये सब चीज़ों करने का मकसद क्या है कि मैं अब मॉनिटरिंग के लिए बार बार अपने टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं न्यूरेक यूज़ कर रहा हूँ, मैं डेटाडॉक यूज़ कर रहा हूँ, और मैं ग्राफाना, प्रोमेथियस, सब चीज़ों को एक मतलब साथ यूज़ कर रहा हूँ। तो इट्स डिफिकल्ट ना एक बंदे को मैनेज करना। उसके बाद फिर गैप आ रहा है, ऑडिट लॉग्स देख रहा हूँ, API एरर्स देख रहा हूँ, आप सब उसको देख रहे हो, क्रिटिकल इश्यूज आ रहे हैं, ऑपरेशनल इश्यूज हो रहे हैं, सब सब आपको साउंड्स क्रिएट कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ा इशू है कि आपको सिक्योरिटी भी देखनी है सबसे पहले, तो आपको फिर फाइनल ऑप्स भी देखना है, फाइनल ऑब्सेशन भी देखना है कि भाई अब सब कुछ आपने सर्विस तो एक्टिव कर दी, यू हैव ओपन ऑल द AWS सर्विसेज, बट इशू क्या आया? ब्लैक बॉक्स, द मैजिक, जहां आपको सारे अमाउंट्स पेमेंट्स वगैरह आ रही हैं, और आपका जो फ्री क्रेडिट अकाउंट था $200 वो ऑलमोस्ट एंड हो गया। तो और हमारी जो मैनुअल डिपेंडेंसीज है वो बहुत ज्यादा हो गई। मुझे अपना बजट क्रिएट करना पड़ा है AWS एक्सप्लोर पे जाके, मुझे अपना रिपोर्ट्स वगैरह निकालनी पड़ी है, मुझे जनरेट करना पड़ रहा है। तो आप सब लोगों को ये मेरे ख्याल से इश्यूज आए होंगे। तो मुझे बता सकते हैं कि ये किस किस को इशू आए, और किस तरह उन्होंने इसको सॉर्ट आउट किया, ताकि एक इंटरेक्शन होता रहे, बोलते रहें ताकि आपको भी फायदा हो, मुझे भी सेशन देने में मजा आए। कोई हैंड एक रेस करके बता सके।
ओके, तो इन सब इश्यूज का एक हल है हमारे पास, वन ऑटोमेटेड 3 प्लेयर्स, जिसमें आपकी मॉनिटरिंग भी आ जाए सारी। आप मॉनिटर कर सको रिसोर्सेज को, क्लाउड वॉच को, अलार्म को, सिक्योरिटी पोस्टर्स को। आप लॉग देख सको कि लॉग किस तरह मैं देख सकता हूँ, ऑटोमेटिकली एपीआई कॉल कैसे कर सकता हूँ, मेरी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे जा सकती है। ठीक है, और उसके बाद मैं उस AWS अकाउंट वगैरह को किस तरह डेली रीडली एनालिसिस कर सकता हूँ एक सब पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे। कैसा हो जाएगा, ये सब सब चीजें आपकी ना एक डैशबोर्ड पर है। तो इस मॉनिटरिंग भी आपकी हो रही है, लॉग्स भी हो रहे हैं, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी हो रही है, तो सब एक डैशबोर्ड पे है। तो डैशबोर्ड पे हमारा काम किस तरह करेगा, डैशबोर्ड का हमारा आर्किटेक्ट क्या है। तो ये हमारा एक कंप्लीट आर्किटेक्ट है। इसके जाने से पहले मैं आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये मेरा एक परफेक्ट डैशबोर्ड है, इसको रिकॉर्ड मत कीजिएगा। ठीक है, ये मेरा एक परफेक्ट डैशबोर्ड है। मेरी आवाज आ रही? जी जी, लाइव का रिकॉर्डिंग हाँ, काइंडली थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है। हाँ। चीज को आपने जनरेट करना है, एक्सप्लोर करना है, उसका समझने पहले आर्किटेक्ट है। जैसे अब बुर्ज खलीफा, बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि यार बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बनाए, लेकिन नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि उसका आर्किटेक्ट बहुत मजबूत है। इसी तरह अब हमारा मेन मोटिव क्या है, हम इसको किस तरह काम करेंगे, ये हमारा लैम्डा किस तरह काम कर रहा है, और अमेजोन डीबी क्या काम कर रही है, एपीआई गेटवे किस तरह काम कर रहा है, और इस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक कंप्लीट डिटेल के साथ आर्किटेक्ट के साथ बताऊंगा। अब मेन फोकस इस डायग्राम का यही है कि यार आप फोकस करो कि काम किस तरह हो रहा है, और विजुअलाइज सर्विस, माइक्रोलाइज सर्विसेज कैसे यूज हो रहे हैं, लैम्डा कौन सा यूज हो रहा है, सैम हम कैसे यूज कर रहे हैं, अमेजॉन टाइम डीबी कैसे यूज हो रहा है, और ये सारी चीजें किस तरह यूज हो रही है। राइट? ठीक है, अब ये मेरा मेन आर्किटेक्ट है कि मैं इसमें कौन कौन से सर्विसेज यूज करूंगा, कौन कौन से रिसोर्सेज मेरे चलेंगे, क्या ये रिसोर्सेज को डिलीट तो नहीं कर देंगे। सबसे मेन सिक्योरिटी हमारा जो सॉक ऑडिट होता है, ये AWS बेस्ट सिक्योरिटी होती है कि आपके रिसोर्सेज कौन कौन से यूज हो रहे हैं, और क्या रोल है, और इंक्रिप्शन हुई हुई है या नहीं हुई हुई, अकाउंट किस तरह काम कर रहा है, लैम्डा किस तरह काम कर रहा है, और इसका आर्किटेक्ट क्या है, और डिटेल क्या है। और फॉर एग्जांपल मैंने रेंट, चलो ये रेंट पे तो मैंने ले लिया, इसकी पर पर मंथ कॉस्ट क्या है। आप कॉस्ट बचाने के चक्कर में डैशबोर्ड तो बना दिया, लेकिन उस डैशबोर्ड की कॉस्ट इतनी हो गई कि वो बाकी चीजें चला नहीं पा रहा। तो इसमें हम सबसे पहले लैम्डा का एक फंक्शन यूज करेंगे। लैम्डा क्या करता है, आपकी AWS एपीआई वगैरह और डेटा वगैरह को जनरेट करवाता है, सिक्योरिटी यूजेज करवाता है, लॉग साइट कराता है। सबसे पहले हम अपना एक स्टार्ट करेंगे कि भाई हमारा इनमें क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। AWS क्लाउड एक्सप्लोरर जो सबसे मेन फोकस है, उसके बाद कौन कौन से रिसोर्स की इन्वेंट्री है मेरी। आप किसी भी शॉपिंग वगैरह पे जाते हो ना, तो सबसे पहले आप चेक करते हो कि यार इस ड्रेस की इन्वेंट्री मेरे पास है या नहीं है। तो आपका ट्रिगर जाएगा इन्वेंट्री पे कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। फिर आप लॉक्स चेक करते हो कि यार ये ड्रेस जो मैंने लिया था, ये मतलब बीइंग अ बिजनेसमैन, कि यार इसके लॉग्स वगैरह, मतलब पेड़ कहाँ था, कहाँ से एक्टिविटी हुई है, किसने परचेज किया है, फिर इसकी सिक्योरिटी। उसके बाद फिर आप आते हो उसके ब्रिज पे, मतलब वो किस तरह मेरे पास ट्रिगर हुआ, और किस तरह में इन्वेंट्री आ रही है। उसके बाद कौन इसको हैंडल कर रहा है, IAM रूल उसमें आ जाता है। फिर डायनामो डीबी द मेन फोकस, जिसमें हमारा डेटा वगैरह रॉ, जो सारा डेटा वो स्टोर होता है। फिर हमारा इंटीग्रेट करता है एपीआई गेटवे से, जो हम लैम्डा के यूज करेंगे, समरी, कॉस्ट एनालिसिस। फिर हमारे पास आता है क्लाउड फ्रंट, जो मेन फोकस है, जिसमें सारी चीजें आपकी रन हो रही हैं, जो आपकी कैशे वगैरह को रन कर रहा है। जैसे ये हो रहा है, जैसे देखें ये थ्रू क्लाउड फ्रंट हो रहा है, मेरा लोकल ही नहीं है, ये उस पे है। ठीक है, अब यहाँ आ गए मेन फोकस के इसके फीचर्स पे। क्या, इतना सब कुछ तो मैंने कर लिया, इसकी एस्टिमेट कॉस्ट क्या है, इसको बनाऊंगा कैसे, फाइन ऑप्स क्या है, सिक्योरिटी क्या है, लॉगिन एरर क्या है, तो मैंने आपको ये
डिटेल व्यू के साथ बताया कि यार इसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं, एनालाइज कैसे कर सकते हैं, पर मंथ कॉस्ट क्या आएगी। तो इसकी कॉस्ट आएगी 3 से 5 पर मंथली कॉस्ट, जिसमें एक कॉस्ट लैम्डा की होगी, जिसमें आपका पर लैम्डा काउंट होगा, और डायनामोडीबी होगा, एपीआई गेट होगा, क्लाउड वॉच होगा, और ये सारी चीजें होंगी स्ट्रक्चर के साथ। इसमें आपके फाइनऑप्स टीम भी यूज कर सकती है, सिक्योरिटी टीम भी यूज कर सकती है, और डिफरेंट आर्किटेक्ट वगैरह यूज कर सकते हैं। अब ये जो अकाउंट का लाइव डेटा आपको मैं दिखा रहा था, इसमें रिकमेंडेशन आ रही है, स्टोर हो रहा है डेटा उसमें, और विजुअलाइजेशन हो रही है, लाइव कॉस्ट दिखा रहा है, और ये खुद ट्रिगर करेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू इट विल ट्रिगर बाय द हिमसेल्फ। और लॉग्स एनालिसिस होगा, केपीआईज वगैरह आएंगी, इसमें आप मल्टीपल मल्टीपल चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हो जो आपके इंफॉर्मेशन हो। अब मैंने एक इसमें जो यूज किया है वो सैम का यूज किया है। और सैम क्या है, एक AWS का ओपन सोर्स मॉडल है, जिसमें आपको सिर्फ इट्स फ्री। लाइक सबसे पहले आपका क्वेश्चन आता है कि यार ये मैं और जो यूज कर रहा हूँ ये फ्री है पेड है? ये फ्री है और ऑथराइज्ड है AWS का, तो आप यूज कर सकते हैं। उसमें आपका बैकएंड भी दिखाएगा, एपीआई भी कॉल करेगा, स्केजुलर भी बताएगा, होस्टिंग आपकी क्लाउड फ्रंट पे हो रही होगी, ओरिजिन वाइज हो रही होगी, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना सैम क्लाउड फॉर्मेशन, उससे हो रही है। और क्या क्या कवर करेगा, केसेस इस तरह करेगा, डिप्लॉय आप बैकएंड सैम पे होगा, और लैम्डा पे रन करेगा, कॉन्फ़िगर बाय उसे करेगा। तो ये ओवरऑल एक इसका प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको देख सकते हो बैक एंड, फ्रंट एंड। और उसके बाद कॉस्ट एंड रिसोर्स विजिबिलिटी, आपकी लाइव डैशबोर्ड दिखा रहा है कि भाई आप कितना स्पेंड किया, कितनी सर्विसेज हैं, कितना आपका अमाउंट आ रहा है। तो देखें जैसे ये यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद आपका सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस, जो बहुत बहुत नेसेसरी है मॉनिटरिंग के लिए। आपके कितने रिसोर्सेज हैं, कितने रिसोर्सेज का MFA एनेबल है, कितनों की सीक्रेट की वगैरह रन हो रही है, और गैप वगैरह क्या आ रहे हैं। क्योंकि जब आपको पे कुछ ऑडिट वगैरह आता है ना, तो दिस लाइव डैशबोर्ड बहुत आपके जरूरी काम आते हैं। उसके बाद हम आते हैं ऑटोमेटेड लॉग एंड एरर इंटेलिजेंस, जो मैंने आपको लॉग दिखाया ये रहे कि भाई लॉग किस तरह काम कर रहा है। उसके बाद आता है प्रायोरिटाइज, कि मैं सेविंग एक्शंस कैसे लिख सकता हूँ। पहले मंथ में अभी मैं 9 मंथ सेव कर सकता हूँ, फिर मैं एक गार्ड बजट अलर्ट क्रिएट कर सकता हूँ उसके हिसाब से, फिर उसको अलर्ट क्रिएट कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट मंथ में मैं इसको अडॉप्ट कर सकता हूँ, उसके नेक्स्ट मंथ में मैं ये सारी चीजें परफॉर्म कर सकता हूँ। अब मेन फोकस आता है कि यार सब कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई, यूजर आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, लेकिन आपकी विजिबिलिटी क्या है, पर मंथ कॉस्ट कितनी आ रही है AWS इन्वायरमेंट की। तो आप एक जब आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह पकड़ते हो तो यूजर से, तो यूजर्स आपको बोलता है कि यार आप पे है कि आप मेरा प्लेटफॉर्म यूज करो या अपना प्लेटफॉर्म यूज करो। तो आप इन शॉर्ट इस तरह प्लेटफॉर्म यूज कर सके, उनको कॉस्ट एस्टिमेशन भी बता सकते हो कि यार मंथली आपकी कॉस्ट एस्टिमेशन इतनी है, और नेक्स्ट 30 डेज में इतनी होगी, और एस्टिमेशन वगैरह सारी आप उसको एक पर्टिकुलर वे में दे सकते हो। अब जो मेन फोकस है कि यार ये बना क्या है, किस तरह बना, तो डोंट वरी, मैं आपको सेशन के एंड में जब बिल्कुल सेशन एंड हो जाएगा तो लिंक्डइन पोस्ट करते हुए मैं आपको एक गिटहब रेपो जी शेयर कर दूंगा। आपने कुछ नहीं करना है, फिर इसको गिट क्लोन करना है ये यहाँ से, और सारे स्टेप्स यहाँ मेंशन है कि किस तरह काम करेगी। ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, पहले आपको वेरीफाई कैसे करना है, उसके बाद अपना अकाउंट कैसे चेक करना है कि मैं हूँ, फिर CD बैकएंड करना है, फिर डिप्लॉय, फिर ये मतलब यू गाइस आर एक्सपर्ट, नो नीड टू टेल मुझे कि ये किस तरह काम करेगी कल। और ये सारा इसके स्ट्रक्चर है इसके साथ, और ये सारा आपको डिटेल में मैंने यहाँ बताया हुआ। आप इसको देख सकते हो, कंट्रीब्यूट कर ये इसकी स्ट्रक्चर डायग्राम वगैरह यहाँ मेंशन। ठीक है, और ये ऑटोमेशन पे सेल्फ करेगा, मतलब यार आपकी मंथली 440 है, कॉस्ट रन 45 है, और सिक्योरिटी कंप्लायंस 80 है, मतलब आपको एक कॉम्पैक्ट स्केल रिजल्ट दे सकता है एक पूरे डैशबोर्ड में। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे हमारे कि यार हमने सबसे पहले क्या टॉप सेविंग स्टार्ट की, उसमें बजट बनाया, आइडियल क्लीन अप किया, जो भी हमारे MFA वगैरह थे वो हमने बंद कर दिए, जो यूजर लॉगिन नहीं थे उनको रोल आउट कर दिए।
फिक्स कर दिया। ये हमारा एक मैनुअल रिएक्टिव ऑटोमेट से इंटेलिजेंट एआई, जो हम बार बार एआई कर रहे हैं, किस तरह काम करता है। ये नहीं है कि आपने कुछ चीज जनरेट कर दी, पीडीएफ बना दिया। एआई जो क्लाउड में है वो ये है कि किस तरह आप अपना मैनुअल वर्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। तो गाइस, आपको कोई यहाँ पे कंफ्यूजन, कोई सवाल, आपको कुछ सेशन क्या मेंटोरशिप कोई है तो मुझे आप बिल्कुल बता सकते हैं। लाइबा जो भी हैंड रेस करें उनके माइक अनम्यूट कर दें। हाँ, और मतलब सवाल करने से पहले सबसे पहले आप फीडबैक दें कि आपको कैसा प्रेजेंटेशन लगी, समझ आया, मैंने मतलब कुछ आपको। शराफत हुसैन, आई गेस आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा। अच्छा ठीक है माइक। अच्छा सबसे पहले तो जज़ाक अल्लाह, अल्लाह ताला आपको अजर दे, बड़ा अच्छा सेशन किया आपने। और मैं अच्छा मेरा हाँ एक चीज़ तो ये है कि ये इस तरह के सेशंस आप करेंगे कंटिन्यू या सिर्फ एक सेशन होगा या फिर आप मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे? एक तो ये चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, आगे फ्यूचर क्या मतलब प्लान है आप। और दूसरी चीज़, अच्छा इस प्रोजेक्ट से मुतल्लिक मेरा क्वेश्चन ये था कि इसमें जो मुझे थोड़ी सी फीलिंग आ रही है, हमने मतलब आपने ऑटोमेशन की है वो तो ठीक है उस हद तक, लेकिन एआई का अगर हम कहें कोई एलएलएम मॉडल्स वगैरह या फिर वो चीज़ शायद यूज़ नहीं की, या फिर जो ऑटोमेटिक जिस तरह का होता है ना एजेंटिक एआई, उसमें गोल ओरिएंटेड होता है कि यार वो ऑटोमेटिक डिसीजन लेगा। लाइक अगर कोई कोई ऐसी सर्विस है जो अनयूज्ड है सिंस लास्ट 1 मंथ, तो उसको वो मतलब ब्लॉक कर दे या डिलीट कर दे। फॉर एग्जांपल ईबीएस वॉल्यूम वगैरह हो गए या इस तरह का। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें एआई का इस्तेमाल कोई मॉडल्स वगैरह का वो किस जगह पे हुआ है या वो नहीं हुआ, ये जस्ट ऑटोमेशन हुई है। एपीआई हम कॉल करके मुख्तलिफ सर्विसेज को एक जगह पे एक डैशबोर्ड में हम लोग शो कर रहे हैं। तो इस बारे में थोड़ा सा वो रहनुमाई कर दें। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे क्वेश्चन किए दोस्त आपने। मेरा और आपके जो माशाल्लाह जो हमारे कैप्टन है, इनका तो यही है कि यार मैं कोशिश करूं आपको मेंटोरशिप दूं, सेशंस कंटिन्यूसली हो, और सिर्फ मैं ही आपको ना आके पकाऊं, बहुत सारे और दोस्त भी आएंगे मेरे। तो एक हमारा सिलसिला चलता रहेगा। बट ऑडियंस होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम। मुझे अच्छा लगा यार 30 बंदे आए हैं, 32 बंदे आए हैं, लेकिन अगर 50 60 70 हो तो और मजा आएगा। और दूसरा यार, ऑटोमेशन इस तरह है कि मैंने AWS का कीरो IDE यूज किया है। उसमें मैंने बहुत सारे LLM और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मैंने शेयर किए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मेरा कीरो IDE। इससे इसको मैंने यूटिलाइज किया है, इसके साथ साथ कुछ वर्क हुआ है, और ये मेरा रिसोर्स है। और ये मेरे सारे इसके साथ फाइल्स हैं जो मैंने गिटहब रेपो बनाई है। उसमें रिक्वायरमेंट, टास्क, और कीरो आप सब लोगों ने यूज किया होगा। तो कीरो में मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया है मैं आपको दिखा सकता हूँ। MCP सर्वर यूटिलाइज किया है। MCP सर्वर क्या है, जैसे आपको कनेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडर दे रहा है। उसके बाद एजेंट्स क्या है, आप कुछ भी चीज जनरेट कर रहे हो और हुक्स बना रहे हो, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डैशबोर्ड है, स्पेक्स क्या है मेरे, ये है कॉल एनालाइज डैशबोर्ड है। हुक्स क्या है कि यार मैं कुछ ऐसी चीज जनरेट कर रहा हूँ कि वो काम करे। और स्किल्स क्या है इसमें कि यार ये पर्टिकुलर स्किल्स, अब फॉर एग्जांपल मैं और आप बात कर रहे हैं, आप और मुझे बात करने में बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है और चीजों को यूटिलाइज करना है। तो पर्टिकुलर मेन मुद्दा क्या है, हमारा डैशबोर्ड, ना कि कुछ और। तो मैंने ये यूज किया है। अच्छा, डिलीट का ऑप्शन मैंने अभी इस पे नहीं रखा, क्योंकि ये AI मॉडल है और इसको जनरेट लाइव इन्वायरमेंट पे चल रहा है। तो
AWS की कॉज सही। की बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है सिक्योरिटी ऑडिट्स की? कोई भी चीज ऑटोमेशन से डिलीट ना हो।